Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start movement in plants. An important lesson from examination point of view. Let us start. Organism respond to external as well as internal stimuli. यहाँ सबसे पहला वर्ड आया स्टिमुलस. ये स्टिमुलस का सिंगुलर प्लूरल है. स्टिमुलस mean any change in the environment. Environment, external environment हो या internal environment हो, environment में आने वाली change को stimulus कहते हैं. और organisms में ये ability होती है कि वो external और internal environment में आने वाली changes को respond करते हैं. इसलिए पहली बात ही उसने ये लिखी है, organism respond to external as well as internal stimuli. Animals show movement in response to external stimuli, and they change their location in response to the stimulus. External stimuli के नतीजे में animals movement show करते हैं और अक्सर they change their position. वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं एज अ होल. दे शो लोकोमोशन. Similarly, plants also show movement in response to the stimuli, but as the plants are fixed, they do not show locomotion. They change their growth pattern. Plants में locomotion तो नहीं होती, लेकिन प्लांट्स अपने ग्रोथ पैटर्न में, ग्रोथ के तरीकेकार में तब्दीली लाते हैं. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स. इंपॉर्टेंट लेसन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है. ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. वो हमारे से पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होती हैं. आर ड्यू टू इंटरनल काज, या उनकी कोई अंदरूनी वजह होती है. बॉडी के अंदर किसी वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कहते हैं. ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू इंटरनल कॉज. हमारी बुक वाला लिखता है ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस, खुदकार, ड्यू टू इंटरनल कॉज, जबकि पैराटोनिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस. So this is the difference between autonomic and paratonic movements. Autonomic movements are spontaneous and they are produced due to an internal cause. However, paratonic movements are due to external causes. अब इन दोनों में की टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले autonomic movements, which are spontaneous, which are due to internal cause. There are three types of autonomic movements: tactic movements, turgor movements, and growth movements. Autonomic movements की तीन types हैं: tactic movements, turgor movements, and growth movements. इनको one by one डिस्कस करते हैं. सबसे पहले tactic movements. These are the movement of an entire cell or organism as a whole from one place to another.
These are movement in the form of locomotion. टैक्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? ऐसी मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म या सेल एज अ होल पूरे का पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए. दे मे बी ड्यू टू इंटरनल कॉज और एक्सटर्नल कॉज, दोनों होती हैं, लेकिन हमारी बुक वाले ने यहाँ इंटरनल कॉज लिखा है और जो एग्जाम्पल दी हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई वाली हैं. इसलिए आप अपनी बुक के मुताबिक लिख दीजिएगा, लेकिन सही बात यही है कि टैक्टिक मूवमेंट्स में बी ड्यू टू इंटरनल कॉज और ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज. तो अगर हमने ऑटोनोमिक में इसको लिखना है तो हमें इंटरनल कॉज लिखना होगा, और अगर हमने इसको पैराटोनिक में लिखना है तो एक्सटर्नल स्टिमुलस लिखना होगा. आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं. एनीहाउ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसमें से याद रखनी है, movement of entire cell or organism as a whole from one place to another due to internal oblique external stimulus. These are movements in the form of locomotion. Tactic movements की आगे दो टाइप्स हो सकती हैं on the basis of the direction of the movement. Tactic movement may be positive if it is toward the stimulus. If the movement of a cell or organism as a whole towards the stimulus, then this is called positive tactic movement. Or if movement is away from the stimulus, then this is called negative tactic movements. Tactic movements are of two types on the basis of the nature of the stimulus. पहले यहां जो हमने पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट की बात की, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. जबकि अब जो ये टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, this classification is on the basis of the nature of the stimulus. Phototactic movements क्या होती हैं? Movement of organism or a cell as a whole in response to the stimulus of light. Movement of organism or a cell as a whole in response to the stimulus of light. If the movement is toward the source of light, then it is called positive phototactic. Or if the movement is away from the source of light, then it is called negative phototactic movement. तो tactic movements कौन सी हैं? Movement as a whole of a cell or organism from one place to another due to external stimuli. Or if movement is toward the stimulus, then this is positive tactic movement. If it is away from the stimulus, then that is negative tactic movement. Or tactic movements are of two types on the basis of the nature of the stimulus. Phototactic movements, movement of organism or a cell as a whole in response to stimulus of light. इसमें फोटोटैक्टिक मूवमेंट में हमारे पास एग्जाम्पल है movement of the chloroplast towards the light due to cyclosis. क्योंकि प्लांट्स में टैक्टिक मूवमेंट जो है एज अ होल ऑर्गेनिज्म की तो नहीं होती, लेकिन सेलुलर लेवल पे विद इन द सेल ऑर्गेनेली की मूवमेंट को एग्जाम्पल बनाया गया है. पैसिव मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड द लाइट. It helps the chloroplast to absorb maximum light for carbon dioxide. सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो suitable लाइट की तरफ मूव करते हैं ताकि वो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकें. लाइट की इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन affect the intercellular distribution of the chloroplast.
वो कह रहा है लाइट की शिद्दत और लाइट की डायरेक्शन दोनों सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। यहां आप देख सकते हैं ये सेल का सरफेस व्यू, टॉप व्यू दिखाया गया है। डिम लाइट में क्लोरोप्लास्ट जो है वो इवनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लाइट हो, बहुत ज्यादा लाइट हो, तो तब भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट से बचने की कोशिश करते हैं, उनका अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है। और स्ट्रॉन्ग लाइट में क्लोरोप्लास्ट मूव टूवर्ड द पेरिफेरी, पेरिफेरी में जो साइडें होती हैं सेल की उसमें एकमुलेट हो जाते हैं। और यहाँ डिम लाइट और डार्क लाइट का कंपैरिजन किया गया। डिम लाइट में क्लोरोप्लास्ट सरफेस व्यू में एकमुलेट हुए ताकि लाइट को कैप्चर कर सकें, लेकिन डार्क में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दे मूव अवे फ्रॉम द डार्क टुवर्ड्स द लाइट। इसके बाद टैक्टिक मूवमेंट में दूसरी जो टाइप है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म as a whole in response to the stimulus of chemical। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल हमारी बुक वाले ने दी है वो है मूवमेंट शोन बाय द स्पर्म ऑफ द लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। जो ब्रायोफाइट्स और फर्न की आर्चिगोनियम होती है, इस आर्चिगोनियम के अंदर एग से न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है। ये जो रेड कलर में दिखाया, दिस इज न्यूक्लिक एसिड ओजिंग आउट ऑफ द आर्चिगोनियम। जो एंथीरोजाइड्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो इस न्यूक्लिक एसिड की वजह से टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम मूव करते हैं और फिर यहां एग के साथ जाकर मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो दिस movement of entherocyte sperm of liverworts, mosses, ferns toward the archegonium is because of chemical। और केमिकल यहां कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड which oozes out from the mouth of the archegonium। ये वाली बात उसने लिखी है। द मूवमेंट शोन बाय द स्पर्म्स ऑफ द लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स टुवर्ड आर्चिगोनिया, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय द ओवम। ये एग्जांपल है कीमोटैक्टिक मूवमेंट की। ये तो थी टैक्टिक मूवमेंट्स, उनकी टाइप्स विद एग्जांपल्स। इसके बाद है टर्गर मूवमेंट्स। Turgor movements are produced due to differential changes in the turgor and size of cell as a result of gain or loss of water। प्लांट पार्ट के मुख्तलिफ साइट्स पे टर्गर चेंजेस डिफरेंट आते हैं। किसी एक साइट के सेल टर्गर गेन करते हैं और दूसरी साइड के सेल जो हैं वो टर्गर का लॉस करते हैं। इस वजह से सेल के साइज में फर्क पड़ता है और इस वजह से मूवमेंट होती है। ये बात लिखी है, टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन द टर्गर एंड साइज ऑफ द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। डिफरेंशियल चेंजेस से क्या मुराद है? सेल, जैसे मैंने बताया कि प्लांट पार्ट अगर लीफ है या पिटियोल है तो उसकी जो मुख्तलिफ साइड्स हैं, अपर साइड है या लोअर साइड है या राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, उन पे उनके सेल्स, एक साइड के सेल्स टर्गर गेन करते हैं, दूसरे साइड के सेल का टर्गर का लॉस होता है, जिसकी वजह से सेल के साइज पे फर्क पड़ता है और उस वजह से मूवमेंट होती है। तो हम कैसे लिखेंगे? टर्गर मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन द टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। इसमें दो एग्जांपल्स हैं। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट
और स्लीप मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। चलें इनकी तरफ देखते हैं थोड़ा सा। स्लीप मूवमेंट्स, बीन प्लांट्स एंड मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, वो प्लांट्स जिनकी जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम होता है, फली होता है, उनको लेग्यूम कहते हैं। बीन का ताल्लुक भी उसी ग्रुप से है। लेग्यूम फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग, वो इवनिंग में अपने लीव्स को झुका लेते हैं, जबकि रेज देम इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में फिर ऊपर कर लेते हैं। These are known as sleep movements. Bean plants and some members of legume family lower their leaves in the evening and raise them in the morning. ये एक मैंने अपनी तरफ से बीन प्लांट का लीफ दिखाया है। मॉर्निंग में लीफ को रेज किया हुआ है, इवनिंग में लीफ को लोअर किया हुआ, नीचे किया हुआ है, सोया हुआ है, सोई हुई फॉर्म में है। ये स्लीप मूवमेंट्स हैं। इनकी वजह क्या है? These are due to daily changes in the turgor pressure in the pulvinus. स्लीप मूवमेंट की वजह यह है कि रोजाना की बुनियाद पे जो पल्विनस के सेल्स हैं उनमें टर्गर चेंजेस आते हैं। डेली चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर इन द सेल्स ऑफ द पल्विनस। अब व्हाट इज पल्विनस? ये लीफ है, लीफ का पिटियोल, स्टाक, और पिटियोल की बेस पे स्वलन पोर्शन है, इनलार्ज पोर्शन है, स्वलन पोर्शन है, फूला हुआ हिस्सा है, इसको पल्विनस कहते हैं। पल्विनस is a swollen portion of the petiole at the base where leaf is attached to the stem. Suppose कि ये stem है, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ये लीफ है, ये उसका petiole। petiole की बेस पे ये जो swollen portion है, this one, जिस जगह पर कर्सर है, ये swollen portion जो है, this is called pulvinus। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज पल्विनस? द swollen portion of the petiole at the base where leaf is attached to the stem. अगर हम इस पल्विनस का सेक्शन काटें, ये पल्विनस की एनाटॉमी दिखाई है। दिस पल्विनस कंसिस्ट ऑफ नैरो स्टैंड ऑफ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल्स हैं, और surrounded by large parenchyma cell with a lot of intercellular spaces. Vascular bundles हैं और parenchyma cells हैं, और parenchyma cells के बीच में काफी सारी intercellular space मौजूद है। ये बात उसने लिखी है। Pulvinus is a swollen portion of the petiole at the place of attachment of leaf with the shoot. This petiole is composed of parenchymatous cells with the relatively large intercellular spaces and a central stand of vascular tissue. जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये swollen portion है petiole का। अगर हम इसका सेक्शन काटें, इसका अंदरूनी हिस्सा देखें, तो सेंटर में वस्कुलर स्टैंड है और फिर पैरेन्काइमा सेल्स और उनके बीच में काफी सारी इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये स्लीप मूवमेंट की वजह क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्लीप मूवमेंट्स आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन द टारगेट प्रेशर ऑफ द सेल्स ऑफ द पल्विनस। सुबह के वक्त मॉर्निंग में पल्विनस की नीचे वाली साइड जो होती है, नीचे वाली साइड के सेल टर्गर को गेन करते हैं, जिसकी वजह से लीव्स कम टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लीव्स रेज हो जाते हैं। जबकि शाम के वक्त नीचे वाली साइड
पल्विनस की जो नीचे वाली साइड के सेल्स हैं वो टर्गर का लॉस करते हैं, एज ए रिजल्ट लीफ गो टू स्लीप पोजीशन। ये वाली बात उसने लिखी है, देखें, when the turgor pressure on the lower side of the pulvinus increases, the leaves rise and become horizontal। ये वाली बात, अगर पल्विनस के नीचे वाली साइड के सेल जो हैं वो टर्गर को गेन करेंगे तो लीव्स राइज कर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। सारा दिन ये वाली सूरत हाल रहती है। शाम में, इवनिंग में क्या होता है, नीचे वाली पल्विनस के नीचे वाली साइड के सेल टर्गर का लॉस करते हैं, और when the turgor pressure decreases in the lower side of the pulvinus, the leaves lower and go to sleeping position। ये स्लीपिंग मूवमेंट्स थी और उसके काजेस थे। इसके बाद रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स ऑफ टच मी नॉट। When the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, जो छुई मुई का पौधा होता है उसके कंपाउंड लीफ होते हैं, आपको पता है उसका लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट, छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड होता है। लेमिना सिंगल पीस नहीं होता, लीफलेट में डिवाइड होता है, ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। जब उसको टच किया जाए तो उसके लीफलेट जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, लाइक दिस। ये पोजीशन जो है ये क्लोज लीफ वाली बात है। जब कंपाउंड लीफ ऑफ टच मी नॉट को टच किया जाए तो उसके लीफलेट क्लोज हो जाते हैं, एंड दिस रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकंड और टू, 1-2 सेकंड लगते हैं ऐसा होने में। इसकी वजह भी क्या है, इट इज ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाय द सेल इन द पल्विनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट। ये पल्विनस जो है वो ना सिर्फ पिटियोल की बेस पे मौजूद होता है जो सिंपल लीफ है, लेकिन कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट होते हैं उनकी बेस पे भी पल्विनस मौजूद होता है। होता यूं है, ये सपोज के ये क्रॉस सेक्शन में वो लीफ की पोजीशन दिखाई गई, ये दो, ये वाला और ये वाला, ये लीफलेट है, और ये इस लीफलेट की बेस पे पल्विनस है और ये इस लीफलेट के बेस पे पल्विनस है, ये बीच वाला हिस्सा पिटियोल है। अब पैरेन्काइमा सेल जो हैं, जो लीफलेट की अपर सरफेस है, ये लीफलेट पल्विनस की अपर सरफेस है, इस तरफ से ये अपर सरफेस है। अपर सरफेस पे जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं दे लूज द टर्गर। जब वो टर्गर का लूज करते हैं, नीचे वाले सेल में टर्गर ज्यादा होता है, ऊपर वाले सेल में टर्गर कम होता है, जिसकी वजह से लीफलेट जो है वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ये ओपन लीफलेट है, ओपन लीफलेट में टर्गर प्रेशर जो है वो दोनों तरफ तकरीबन एक जैसा होता है, यानी जो अपर साइड पल्विनस की अपर साइड होती है और जो पल्विनस की लोअर साइड होती है, दोनों साइड पे जो टर्गर प्रेशर है वो तकरीबन एक जैसा होता है, जिसकी वजह से लीफलेट जो है वो ओपन पोजीशन में होते हैं। तो हमने ये वाली बात पढ़ी कि व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट माइमोसा इज टच्ड, द लीफलेट फोल्ड टुगेदर। इस रिस्पॉन्स को 1-2 सेकंड लगते हैं, और इसकी वजह rapid loss of turgor by the cell in the pulvinus at the base of each leaflet। हर लीफलेट की बेस पे जो पल्विनस के सेल्स हैं वो उनमें टर्गर का लॉस होता है। इन्वेस्टिगेशन ये बताती हैं कि टच करने पे पोटाशियम आयंस मूव फर्स्ट, पहले पोटाशियम आयन बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से एक्सोस्मोसिस के जरिए वाटर लीव द सेल्स, और it takes about 10 minutes to regain the turgor and restore the internal turgidity of the leaf। वो कहता है तकरीबन 10 मिनट लगते हैं टर्जिडिटी को रीगेन करने में, यानी लीफलेट जो है वो दोबारा ओपन पोजीशन में 10 मिनट के बाद तकरीबन हो जाते हैं। ये रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स ऑफ टच मी नॉट था, अगेन टर्गर मूवमेंट ये थी। तो इसके बाद है ऑटोनोमिक मूवमेंट में जो थर्ड टाइप है वो है ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। पहले अनइक्वल टर्गर चेंजेस थी, अब अनइक्वल ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट में अनइक्वल चेंज आती है,
स्टेम के, रूट के, टेंड्रल के, बड्स के। टेंड्रल आपको पता है, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, जो बेलें होती हैं, जो वाइन्स होती हैं, अक्सर उनके साथ ग्रीन से धागे से लिपटे हुए होते हैं, जो उसको किसी सपोर्ट के साथ अटैच होने में मदद करते हैं, उन्हें टेंड्रल कहते हैं। तो ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड द प्लांट ऑर्गन, लेकिन वजह कोई इंटरनल काज होगा। इनकी 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। तो these are growth movements which are due to unequal growth on the tooth of the plant organ due to internal cause. Epinasty. Epinasty is shown by the leaves and petals. इसमें क्या होता है, आप इस डायग्राम को देखें, ये है बड, लीव्स इन द बड कंडीशन। पूरी तरह क्लोज बड नहीं दिखाई ताकि मैं आपको अपर सरफेस और लोअर सरफेस दिखा सकूं। ये लीफ इन द बड कंडीशन, एक बड ये वाली और एक बड ये वाली। एपिनास्टी में देयर इज मोर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन। ये जो स्मॉल एरोज हैं, ये वाले और ये वाले, ये मोर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपर सरफेस है जिस जगह पे कर्सर है इस लीफ की, और ये इस लीफ की अपर सरफेस, और ये वाली लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। इफ ग्रोथ इज मोर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन, अगर अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा हो तो लीफ जो है बड वो फोल्ड डाउन, वो नीचे की तरफ यूं मूव करते हैं, ये भी इस तरफ को ऐसे मूव करेगा। इस वजह से बड ओपन हो जाएगी, इसको कहते हैं एपिनास्टी। ये डायग्राम सारी कहानी एक्सप्लेन कर रही है। इन एपिनास्टी there is more growth on the upper surface of the leaf in bud condition as compared to lower surface. अपर सरफेस के मुकाबले में लोअर सरफेस के मुकाबले में अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा होती है। और याद रखें, जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा हो मूवमेंट उसके अपोजिट साइड पे होगी। ग्रोथ इस तरफ ज्यादा है तो मूवमेंट इस तरफ, ग्रोथ ऊपर वाली सरफेस ज्यादा है तो मूवमेंट नीचे की तरफ होगी। तो एपिनास्टी में देयर इज मोर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन, एज अ रिजल्ट बड ओपन। ये एपिनास्टी हो गई, बड की ओपनिंग हो गई, यही बात उसने लिखी है। इट इज शोन, एपिनास्टी इज शोन बाय लीव्स एंड पेटल्स। द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशंस शो मोर ग्रोथ as compared to the lower surface. This lead to opening of the bud. ये बड लीफ बड भी हो सकती है और फ्लावरिंग बड के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर फ्लावरिंग बड हो तो तब भी अपर सरफेस पे, पेटल की अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, जिसकी वजह से फ्लावर की ओपनिंग हो जाएगी, बड ओपन हो जाएगी। तो एपिनास्टी में देयर इज मोर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, एंड दिस लीड टू ओपनिंग ऑफ द बड। देन हाइपोनास्टी में अगेन वही बड दिखाई गई है। इफ देयर इज मोर ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस, अगर नीचे वाली सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा है, इस तरफ ग्रोथ ज्यादा है नीचे वाली सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे ग्रोथ कम है, तो मैंने जैसे बताया कि जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी मूवमेंट उसके अपोजिट साइड पे होगी। अगर इस तरफ नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा है, नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा है, तो बड विल रिमेन क्लोज। बड क्लोज रहेगी, बड बंद रहेगी, ओपनिंग नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड हाइपोनास्टी। If growth in the lower surface of the leaf in the bud condition is more than that of the upper surface, then the bud will remain closed. अगर bud condition में लीफ हो या पेटल्स हो, बड कंडीशन में अगर ग्रोथ नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस, तो बड क्लोज रहेगी, इसको हाइपोनास्टी बोलेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। इसके बाद है न्यूटेशन। The growing tip of the young stem moves in a zigzag fashion. जो स्टेम की टिप होती है वो स्ट्रेट मूव नहीं करती बल्कि जिगजैग फैशन में। आप देख सकते हैं यहां तक तो स्ट्रेट नजर आ रहा है, फिर कुछ ऐसे
यूं जिगजैग फैशन में मूव करती है। ये सारे जिगजैग जो टिप में ये सारे जो जिगजैग है वो नजर नहीं आ रहे होते, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए ऐसा किया। वहां तो सिर्फ एक ये वाला इतना हिस्सा मूव करा नजर आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो यंग टिप ऑफ स्टेम मूव इन अ जिगजैग फैशन। ऐसा क्यों होता है? कभी इस तरफ ग्रोथ ज्यादा, जिस इस तरफ ग्रोथ ज्यादा है तो मूवमेंट इस तरफ को होगी, यानी वो दूसरी तरफ को बेंड कर देगा, ये मुड़ाओ इधर को है। फिर ग्रोथ इस तरफ ज्यादा हो गई इस साइड पे, तो वो इधर को थोड़ा सा बेंड हो गया। अब थोड़ी देर बाद ग्रोथ इस तरफ ज्यादा हो गई, वो थोड़ा सा इधर बेंड हो गया। तो ये अल्टरनेट चेंजेस इन द ग्रोथ पैटर्न, कभी एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, कभी दूसरी तरफ ग्रोथ ज्यादा, इसकी वजह से वो जिगजैग फैशन में मूव करता। ये बात लिखी है, द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव इन अ जिगजैग फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन द ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। जो टिप होती है, कभी उसके एक साइड पे ग्रोथ ज्यादा और थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद, थोड़े दिनों बाद, दिन तो नहीं कहेंगे, टाइम होगा, क्योंकि ग्रोइंग टिप जो है वो तेजी से उसमें ग्रोथ थोड़ी सी तेज हो रही होती है। तो growing tip of the young stems moves in a zigzag fashion due to alternate changes in the growth on the opposite side of the apex. इस किस्म की ग्रोथ को न्यूटेशन कहते हैं। This is all about autonomic movements in plants. Autonomic movements which are due to internal cause, which are spontaneous. उनमें पहली टाइप थी टैक्टिक मूवमेंट्स, मूवमेंट एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी फोटोटैक्टिक, टैक्टिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, कीमोटैक्टिक ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल। इसके बाद हमने टर्गर मूवमेंट्स पढ़ी विच आर ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन द टर्गर ऑफ द सेल ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वाटर। उसमें हमने रैपिड मूवमेंट ऑफ टच मी नॉट पढ़ा, और फिर स्लीप मूवमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, जिसमें पल्विनस के बारे में भी हमने बात की। इसके बाद ग्रोथ मूवमेंट विच आर ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन द ग्रोथ ऑन द टू साइड ऑफ द स्टेम, लीफ और टेंडल। उसकी 3 एग्जांपल पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूट्रेशन। और ऑल दीज आर ड्यू टू इंटरनल कॉज। और मैंने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में खास तौर पे लिखा कि वो इंटरनल कॉज की वजह से भी होती हैं और एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी होती हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें उसने उसको ऑटोनोमिक मूवमेंट तो लिखा है और इंटरनल कॉज भी लिखा है, लेकिन जो एग्जांपल दी है वो एक्सटर्नल कॉज वाली है। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।